जय भीम जय पार ते नव बधाए ते अपने गुरदीप जी होर बच्चे ने किसी ने टाइम लेना तो देख लो। ਇਹ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰੋ। पूनम शर्मा, आर यू अवेलेबल? इफ यू हेलो। आर इन द सेशन प्लीज कैमरा ऑन करके प्लीज तुसी यस गल सर। करो। यस, यस प्लीज। हेलो। जय भीम जय भारत जी सबनों। जय भीम जय। सर मेरा क्वेश्चन हैगे आ राजकुमार जी नाया जिन्हों ने मेरे सारे मतलब कि मैं जो सवाल कीते सी उन्होंने मेनू आंसर कीते सी, तो मैं उन्होंने मतलब कि सवाल करना चाहांगी। वो मौजूद ने इत्थे राजकुमार जी? पूनम जी सवाल करो, कोई गल हेलो। नहीं। जी जी हाँ जी, जय भीम सर। सर तुसी मेरे सवाल का जवाब बोलो बेटे बोलो। धर्म की की लोड़ है जे साडी मतलब कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ यस। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਔਰ ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸ਼ੀਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਸਭ ਪਾਪਸ ਐ ਕਰਨਨ ਕੁਸਲਸਿਆ ਉਪਸੰਪਦਾ ਸਹਿਚਿਤ ਪਰਿਯੋਦੋ ਪਨਾ ਏਤਨ ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਾਸਨੰ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਪਾਪਸ ਐ ਕਰਨਨ ਕੁਸਲਸਿਆ ਉਪਸੰਪਦਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਚਿਤ ਪਰਿਯੋਦੋਪਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਧੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਆਇਨੋ ਆਇਨ ਵਿਖਵੇ ਮੱਗੋ। ਇੱਕ ਆਇਨੋ ਆਇਨ ਵਿਖਵੇ ਮੱਗੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ, ਸੱਤਾ ਨੰਗ ਵਿਸ਼ੁੱਧੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਨੋ ਆਇਨ ਵਿਖਵੇ ਮੱਗੋ ਸੱਤਾ ਨੰਗ ਵਿਸ਼ੁੱਧੀ ਆ, ਸੋਕ ਪਰਿਦੇਵਾ ਨੰਗ ਸਮਿਤ ਕਮਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਯਜਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਕ ਪਰਿਦੇਵਨ ਸਮਿਤ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੋ ਮਨਸਾ ਨੰਗ ਥੰਗ ਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੋ ਮਨਸਾ ਥੰਗ ਮਾਏ, ਨਿਆਸਿਆ ਅਧਿੰਗ ਮਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਕੇ ਨਿਬਾਣ ਸਿਆ ਸੱਚ ਕਿਰਿਆ ਏ, ਉਹ ਨਿਬਾਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੀਦਨ ਚਤਾਰੋ ਸਤੀ ਪਠਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤੀ ਪਠਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਿੱਖੂਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏਵਨ ਮੇ ਸੁਤਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਏਵਨ ਮੇ ਸੁਤਨ ਏਕਨ ਸਮਯਨ ਭਗਵਾ ਕੁਰਸੂ ਵਿਹਰਤੀ, ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਰਸੂ ਵਿਹਰਤੀ ਕੰਮਾ ਸਦੰਮਨ ਕੁਰੁਨੰਗ ਨਿਗਮੋ ਤੱਤਰ ਕੋ ਭਗਵਾ ਬਿੱਖੂ ਆਮਨਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਖੂਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4 ਸਤੀ ਪਠਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਏ ਕਾਇਆ ਅਨੁਪੱਸੀ ਵਿਹਰਤੀ ਆਤਾਪੀ ਸੰਪਜਾਨੋ ਸਤੀਮਾ ਵਿਨੇ ਅਲੋਕੇ ਅਵਿਜਿਆ ਦੋ ਮਨਸੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਤੇ ਠਿਤੇ ਨਿਸਿੰਨੇ ਸੁਤੇ ਜਾਗਰਤੇ ਬਾਸੀਤੇ ਤੁੰਡੀ ਭਾਵੇ ਸੰਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਤੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਯਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਸ क्षण ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਤੀ क्षण ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਏ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪੱਸੀ ਵੇਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇਦਨਾ ਸੂ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪੱਸੀ ਵੇਹਰਤੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੁਖਦ ਵੇਦਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਖਦ ਵੇਦਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਖਦ ਮਾ ਸੁਖਦ ਵੇਦਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਦਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦ ਵੇਦਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਵੇਦਨਾ ਆ ਸੁਖਦ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। तथागत भगवान बुद्ध ने फिर धर्म के नु क्या सी। हाँ जी राजकुमार जी, एक मिनट के लिए रुकिए जरा। राजकुमार जी, जो सवाल लड़की ने किया है उसमें इसका आंसर नहीं है जो कुछ आप कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, आप बहुत बुद्ध धर्म के प्रचार करने में भी बहुत सक्षम है, या बहुत तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन जो प्रिसाइज सवाल उस लड़की ने किया है ये उसके आंसर नहीं है। आई एम सॉरी टू से। ओके सर। तो उसने ये कहा कि हमें धम्म की जरूरत क्यों है, उसने ये नहीं कहा धम्म क्या है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दो, मैं प्रोटोकॉल नहीं ब्रेक करना चाहता, अगर आप मुझे इजाज़त दो या रवि जी इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट में इसका जवाब दे दूं उस लड़की को। क्योंकि ये एक्चुअली ये जितने भी सवाल थे पिछली बार के, ये थे तो मेरे लिए ही, लेकिन आपने उनके जवाब दिए। मैं खुश था कि मुझे था कि भी शायद पूनम जी इससे खुश हो जाएगी, लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो उसका जो प्रिसाइज सवाल है कि हमें धम्म की क्यों जरूरत पड़ी, तो उसका मैं 2 मिनट में जवाब दे दूं अगर परमिशन है तो। जी जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। क्यों पूनम जी? यस सर। तो आपने जो सवाल धर्म दी की लोड़ है, जे साडी मतलब कि जे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं किया कि हमें धम्म की जरूरत क्यों पड़ती है। यस। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो अकेले ही थे, तो वहां से उनको ये महसूस हुआ कि अगर ये सारा ज्ञान जो मुझे आज प्राप्त हुआ है, अगर मैं इसको अपने साथ लेकर ही मर गया तो दुनिया को इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वो वहां से चलकर सारनाथ गए। आप ये सारी कहानी जानते हैं। सारनाथ में जो उनके 5 भिक्षु थे जो पहले साथ उनके तपस्या करते थे, वो उनको छोड़कर आ गए थे, इसलिए कि सुजाता की खीर खाली थी अपने भगवान बुद्ध ने। तो वो वहाँ उनके पास आते हैं, तो उन्होंने जब भगवान बुद्ध को आते देखा और उन्होंने कहा कि भाई ये वो प्राणी है जिसने धम्म का तपस्या का तोड़ दिया था नियम,
इसको हम नमस्कार नहीं करेंगे, इसको सल्यूट नहीं करेंगे, इसका आदर भाव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ही भगवान बुद्ध उनके पास आते हैं तो उनका भगवान बुद्ध का जो तेज था, जब भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था, जो उसके अनुभव था, उसके सामने वो झुक गया। उन्होंने उनको नमस्कार कहा, लेकिन भगवान बुद्ध से पूछा कि भाई हम तुझे कहा कि हम तुझे अपने संग में जो अपने जो 5 भिक्षुओं के बीच में नहीं मिलाना चाहते। लेकिन भगवान बुद्ध का जो कथन था, उन भगवान बुद्ध ने उनको बताया कि भाई जो समाज, जो इंसान है, जो आदमी है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है और समाज के साथ कैसे उसको व्यवहार करना है, समाज को के साथ उसको कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, उसका एटीट्यूड, दूसरे के प्रति देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, यही सच मैं जान के आया हूं। अगर चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं। तो भगवान बुद्ध ने उनको ये बताया, वहां से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये ज्ञान अच्छा है इंसान के लिए और सोसाइटी के लिए और सारे समाज के लिए, तो हमें सबको मिलकर इसका समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए। वहां से ये धम्म के जरूरत महसूस करी गई, धम्म की शिक्षा की जरूरत महसूस करी गई, और वो 5 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का साथ देकर ये माना, ये इस्टेब्लिश किया कि सोसाइटी को, अगर सारी सोसाइटी को ही अच्छे रास्ते पे लाना है, अगर सारे लोगों को ही अच्छे रास्ते पे लाना है, तो उन सभी लोगों के पास हमें अपना धम्म लेके जाना चाहिए, धम्म की टीचिंग लेके जाना चाहिए। ये इसलिए उसकी जरूरत महसूस करी गई थी। थैंक यू। ओके सर, अंते जी बुद्ध आवाज के कट और हो गई। अन्य धर्मों में फर्क क्या है? जी हेलो, जी जी आ रही आवाज आ रही है? जी जी जी। तो बुद्ध में और अन्य धर्मों में, जैसे भी पूनम शर्मा मैडम ने भी, हालांकि पंजाबी मुझे नहीं आती है, कुछ वर्ड मैं समझ रहा था, तो शायद उनको भी कुछ मिल जाएगा। तो बुद्ध में और अन्य लोगों में, जो जैसे कि हजरत मोहम्मद है, 2004 से 2007 तक मैं फिरोजाबाद में, यूपी में, मैं चर्च का फादर रहा हूँ। तो बड़ी चर्च थी वहां पर, वो कॉलेज और हॉस्पिटल वगैरह मैंने देखा है, मैं डायरेक्टर था उसका, चर्च का फादर। तो बहुत सारे चीजें हमने सीखने को मिला हमें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अकॉर्डिंग बाइबल, बाइबल का मतलब है पुस्तकों का जखीरा। जो त्रिपिटक है, पाली भाषा में त्रिपिटक बोल देते हैं, एब्रानी भाषा में उसी चीज को बाइबल बोल देते हैं। सेम बात वही है, भाषा का फर्क है, बाइबल और त्रिपिटक एक ही है, भाषा का अंतर है। तो यीशु कहते हैं कि मैं उस खुदा का जो आसमान पर बैठा है, मैं उसका पुत्र हूं, और आप लोग जो पाप करते हैं, उन पापों की सजा आपके बदले मैं लूंगा, और ईश्वर आपको माफ कर देगा। और जो मेरी बात मानेगा, ईश्वर को, वो खुदा को प्यारा होगा। यानी कि ईश्वर को मानना अनिवार्य है, और ये भी मानना जरूरी है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। मेरे से जितना लगाव रखोगे, आपका खुदा उतना ही आपके नजदीक रहेगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं, मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब उस खुदा की इबादत करो जो अकेला है, जो आसमान पर बैठा है, उसके सिवा कोई दुनिया में नहीं है। तो हजरत मोहम्मद कहते हैं कि अगर कोई मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूं, मेरे से पहले तो बहुत सारे नबी आए हैं, वो बुद्धा को भी नबी कहते हैं, और मेरे बाद कोई नहीं आएगा, चैप्टर बंद, मैं आखिरी हूं, मेरी जो बात मानेगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नहीं होगा। यीशु भी यही कह रहे हैं कि जो मेरी बात मानेगा उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। हजरत मोहम्मद भी यही कह रहे हैं कि जो मैं तो आखिरी हूँ, लिस्ट ही खत्म हो जाती है। हजरत मोहम्मद कह रहे लिस्ट ही खत्म हो जाती है, मेरे बाद कोई नहीं आएगा और मेरी बात मान लो। ब्लैकमेल, मैं इसको समझता हूँ एक तरह की ब्लैकमेल। तो एक चैप्टर, एक ये सवाल है, और एक अब उनसे भी आगे, हिंदू धर्म का हालांकि कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है, मैं समझता हूँ जो आजकल का जो हिंदुइज्म चल रहा है भारत में, कृष्ण को उसका संस्थापक माना जा सकता है, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं। उसमें कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानात् वगैरह वगैरह। आत्मा अमर है, अजर है, वो न मरती है
और जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का नाश करके और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। और जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं तो साक्षात ही, समझ रहे ना, यीशु भी बेटे हैं और मोहम्मद भी पैगाम है, लेकिन वो तो अगर मैं तो साक्षात वही हूँ, तो सीधे सीधे मेरी शरण में आ जाओ, और जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नहीं होगा। एक तरह की ये भी ब्लैकमेलिंग होगी। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बोलूंगा। खैर, अब ये 3 तो वर्ड के धर्म है, 4 धर्मों को मैंने उल्लेख किया। अब आ जाइए बुद्ध में क्या विशेषता है, बुद्ध क्या कह रहे हैं इस विषय पे, जबकि हजरत साहब ने बोला है कि मैं उनका आखिरी पैगंबर हूँ, यीशु जी कह रहे हैं अकॉर्डिंग बाइबल कि मैं उनका बेटा हूँ, और कृष्ण ने तो कह ही दिया कि मैं तो साक्षात वही हूँ, जो ऊपर बैठा है मैं ही सब करता हूँ, मैं ही मारता हूँ और मैं ही मरता हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ और मैं ही खत्म करता हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, आप तो सिर्फ एक निमित्त हैं। लेकिन बुद्ध का इस विषय में क्या कहना है? बुद्ध ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो 8 बार दोहराया बुद्ध ने, नकारना कैसे, किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बहुत मोटी पुस्तक में लिखी हो, गलत भी हो सकती है। किसी बात को इसलिए मत मानो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो, गलत भी हो सकता है, क्यों लिखने वाले हम ही लोग हैं ना, इंसान, गलत हो सकता है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई धर्म गुरु कह रहा है, इंसान है, गलती कर सकता है, वो कुछ गलत भी अपने स्वार्थ के लिए बोल सकता है, उन्हें विवेक से सोचो समझो फिर उसको मानो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है। परंपरा यानी कि जैसे कि एक समय का जो पाखंड आजकल जैसे चल रहा है दुनिया भर में, एक समय का पाखंड, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी में धर्म बन जाता है, तो तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, धर्म का वो परंपरा बन जाती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं, मेरे माता पिता कह रहे हैं, मेरे भाई भाई बहन अदर रिलेटिव कह रहे हैं, या लोगों की इच्छाएं है। नेवर। आप किसी बात को मानो तो इसलिए मानो कि तुम्हारी बुद्धि या बुद्धि तर्क विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हो और आपके लिए लाभदायक हो। क्या बोले? आपके लिए लाभदायक हो। मैं कह रहा हूं इसलिए भी मेरी बात को मत मानो, जब तक कि मेरी कही हुई बात पर आप अमल नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि पर खरी नहीं उतरती, और जब खरी नहीं उतरेगी आपके विवेक में नहीं आएगी, आप अमल नहीं करोगे और आपको कोई बेनिफिट लाभ नहीं होगा, तो मेरे कहने से क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं इसलिए भी मत मानो, आप अपनी तर्क बुद्धि और विवेक के अनुसार सोचो समझो और अमल करो, आपको फायदा हो तो मान लो। ये बुद्ध की सबसे बड़ी देशना और सबसे बड़ी जो बुद्ध को उत्तम शिखर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हिमांच्छादित बुद्ध, हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाएं तो दुनिया भर में है। कुछ उपासक लंदन में बैठे हैं, कुछ कैलिफोर्निया में, पूरी दुनिया में जैसे बैठे हैं, अमेरिका में रवि जी बैठे हैं, पर्वत तो वहां भी होंगे, लेकिन हिमालय अतुलनीय है। उसी तरह इन धर्मों के प्रमुख और धर्माचार्यों के बीच में जिस तरह से हिमालय शिखर उत्तम शिखर बड़ा है, इसी तरह बुद्ध भी अलग नजर आते हैं। हमारे देखने की नजरें कमजोर हैं, हमारी नजरें जहां तक उठती हैं हमें वहां तक दिखता है, और जहां दिखना बंद, नजरें उठनी बंद हो जाती है, वहां अंधेरा छाने लगता है, हमें धुंध नजर आता है, हमें आकाश शून्य नजर आता है, और हम ये कहते हैं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हम अपने विवेक और बुद्धि के बल पर जहां चाहे जा सकते हैं, जहां जितना चाहे देख सकते हैं। विपश्यना, जिस कंडीशन में बुद्ध को ज्ञान मिला, एक्चुअली में जो योग है, आजकल पूरे दुनिया में योग की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। उस योग को जिस समय बुद्ध को उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रकाश मतलब सही और गलत की जानकारी हुई, और जानकारी की संसार अनित्य है, संसार अनित्य है, सब मिटने वाला, जो हम देख रहे हैं खत्म हो जाएगा, फिर पुनः होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष सम्मुतपाद जो उन्होंने सारनाथ में बोला, और बुद्ध को जो जिस तरीके से वो बैठे, जिस योग में उनको ज्ञान प्राप्त हो, आनापानसति योग कहते हैं। आनापानसति योग वो प्रक्रिया है। आना, श्वास का आना, पाना जाना, श्वास का लेना, श्वास को छोड़ना, इस पर कंट्रोल करना। सांस कहाँ जा रही है, मतलब लीवर में जा रही है, फेफड़े
फेफड़ों में जा रही है, मेरे गले में सांस वायु को आवागमन, ये किस नाक से जी है वायु, किस नाक से आ रही है वायु, इस पर कंट्रोल करना, बुद्धि में दिमाग में कहाँ वायुगमन हो रहा है कंट्रोल करना, करना पाना, आना पानी में बैठकर पद्मासन में बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे एक्चुअली में सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि एक माइंड, अगर मैं सब कॉन्शियसनेस हासिल कर लूं, आप जितने भी दुनिया भर में लोग बैठे हैं, मैं यहीं से सबके माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे मोबाइल बात करता है, मैं अगर कहूं कि आप इसको चाटा मारिए तो आपको निसंदेह चाटा मार, वो एक कला है सब कॉन्शियसनेस, उसको प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और असंभव भी कुछ नहीं है, बस प्रक्रिया से गुजरना है। एक बात तो सवाल ये हो गया। एक तो ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो एक चैप्टर, एक ये सवाल है और एक अब उनसे भी आगे हिंदू धर्म का हालांकि कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है, मैं समझता हूँ जो आजकल का जो हिंदुइज्म चल रहा है भारत में, कृष्ण को उसका संस्थापक माना जा सकता है, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं। उसमें कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानात् वगैरह वगैरह। आत्मा अमर है, अजर है, वो न मरती है, और जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का नाश करके और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं, और जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं तो साक्षात ही, समझ रहे ना, यीशु भी बेटे हैं और मोहम्मद भी पैगाम है, लेकिन वो अगर मैं तो साक्षात वही हूं, तो सीधे सीधे मेरी शरण में आ जाओ, और जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नहीं होगा। एक तरह की ये भी ब्लैकमेलिंग होगी। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। देखो फिर 1 to 1 हो गए, मैं मोस्टली 1 to 1 करना नहीं चाहता था। जो आत्मा है, अभी अभी धम्माचार्य जी हमें बताकर गए, जो जो हमारा शरीर है, हमारा ही नहीं, जो भी स्पीशीज हैं दुनिया में, जो भी अपनी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जो मैमल्स हैं, जो इंसान है, ये 4 तत्वों से बना हुआ है। और जब तक ये 4 तत्व कंबाइंड रहते हैं तो हम जीवित रहते हैं। जब ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व एब्सेंट हो जाता है तो हम मर जाते हैं। तो इसी को अगर हम देखें तो इसमें परमात्मा आत्मा का कि जब बारिश होती है, आपने देखा होगा, तो पडल बन जाते हैं। वो पडल्स में कुछ ही दिनों में कितने छोटे 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 पूंग आ जाते हैं, देखा, बहुत बार देखा होगा। जहाँ इसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि आपने पौंड देखा होगा, हमारे तो गांव में छप्पड़ होते थे, लेकिन आपने पौंड देखा होगा, जहाँ छप्पड़ी मैं कह देता हूँ, वो जब पानी सूख जाता है वहां से, तो उसमें जितनी भी मछलियां होती हैं, जितने भी मेंढक होते हैं, जहाँ और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सारे सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी आत्मा कहाँ चली गई? जैसे ही फिर बारिश होती है तो वो सारे के सारे फिर निकल आते हैं। इसका मतलब जो एक तत्व उनमें से एब्सेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे डेड हो गए, जैसे ही उनमें वो पानी प्रवेश करता है वो फिर जीवित हो जाते हैं। तो इसमें आत्मा मरती है, आत्मा है या नहीं है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें जानने की। 4 तत्व इकट्ठे होते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं, 4 तत्वों में से कोई भी तत्व हमारे से एब्सेंट हो जाता है तो हम मर जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ
कि बुद्ध जो जिस वेले भगवान बुद्ध जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने जब वो समाज में जाते थे तो वो भिक्षा मांगते थे। यस। तो भिक्षा की जरूरत बुद्ध धर्म में इसका क्या महत्व है? जी। तो भगवान बुद्ध का ये मानना था कि अगर हम एक जगह मठ बनाकर बैठ जाएंगे और समाज के पास नहीं जाएंगे तो समाज जिस गफलत में फंसा हुआ है या जिस अंधकार में फंसा हुआ वैसे ही फंसा रहेगा। इसलिए हमें एक जगह ना बैठकर जगह जगह पे जाके अपने धर्म का, अपनी टीचिंग का प्रचार प्रसार करना है। इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को कहा था कि चरत भिख में चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकन कम पाए, कि मेरे भिक्षुओं आपको अब जहां से चलकर जिस भी दिशा में जाना है आगे ही आगे जाना, पीछे नहीं आना, और चलते ही जहां रुक जाओ वहीं खाना खाना है, और जहां तक चले जा सकते हो चले जाओ, ताकि हमारी जो टीचिंग है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मंगल के लिए ये इस्तेमाल हो सके। अब ये है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको अनाज तो साथ उठा के ले नहीं जा सकते, जब ले जाओगे तो कितने दिनों के लिए के ले जाओगे। तो ये भिक्षा का जो आया कि भाई आप जहाँ जाओगे वहीं के लोगों को जब आप ज्ञान दोगे तो उस ज्ञान के बदले में आप उनसे भिक्षा मांगकर खाओगे। और भिक्षा का एक और सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया कि भाई जब आप किसी दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए जाओगे तो आपकी जो नजरें हैं वो उसके पैरों में होनी चाहिए, जो आपको भिक्षा देने के लिए आ रहा उसके पैरों में होनी चाहिए, ताकि आपको पता ना चले कि उसने भिक्षा आपके भिक्षा पात्र में क्या दिया। इससे भगवान बुद्ध का ये कथन था, ये मानता थी कि अगर किसी घर ने अच्छा दिया तो भी आपका मंगल हो, किसी ने नहीं अच्छा दिया तो भी आपका मंगल हो, किसी ने नहीं दिया तो भी आपका मंगल हो, ताकि भिक्षु को ये ना पता चल जाए कि किस घर से उसको अच्छे से अच्छा मिला, ताकि वह बार बार वहीं जाएगा वहीं जाएगा वहीं जाएगा, बाकी घर को छोड़ देगा। ये उसके पीछे भगवान बुद्ध का विचार था। एक बात इसी भिक्षा के संग में एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा जब सभी स्टूडेंट्स को, कि एक व्हाट्सएप नंबर आप पैदा करें। जसप्रीत कौर ने पहले भी बहुत देर पहले कहा था कि एक हमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, तो एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर आप मुझे दीजिए जिसमें हम बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ना, जहाँ नहीं बोल सकते, जहाँ समय नहीं होता, तो उसको शेयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई हाँ, एग्री। ये जो कथा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थाईलैंड में एक बुद्ध विहारा में रहता था, 2.5 साल में रहा। मैं उस बुद्ध विहारा में भिक्षु बनने के लिए नहीं गया था, मैं बुद्ध को सीखना चाहता था कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, बुद्ध से क्या परिवर्तन आता है। मैं 2.5 साल जमीन पे सोता रहा, और वहाँ मैंने श्रीलंका से भी जो भिक्षु आते थे वो भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ आते थे। फिर बांग्लादेश से भिक्षु आए हुए थे, उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसके साथ उसका बहुत बड़ा कंसर्न है, जो हम दीक्षा की बात करते हैं। तो एक बार चिट्टागांग की पहाड़ियों में भगवान बुद्ध गए हुए थे, तो वहाँ लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध आए हैं, तो भगवान को हमें भी आपका प्रवचन, आपकी शिक्षाएं सीखने का मौका मिलेगा और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सका है। तो भगवान बुद्ध मान गए, भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु भी थे, सभी वहां रुक गए। और जैसे ही भगवान बुद्ध के भिक्षु वहां रुके तो वहां का एक बहुत बड़ा हंकारी धनाढ़ लाला था, लाला कह लो, जहाँ मतलब दुकानदार था, वो भगवान बुद्ध के पास आया और उन भगवान बुद्ध को कहा कि भगवान बुद्ध, आप और आपके भिक्षु जितने दिन भी जहां रहेंगे, मैं
आपको अपने घर से खाना बना के बढ़िया से बढ़िया भेजूंगा, तो आपको किसी भी बाहर जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं बहुत बड़े राजा का बेटा हूं, मैं बड़े बड़े अच्छे वहां से खाने खा सकता था। तो हमारी परंपरा है कि हम गांव में जाएंगे, एक एक घर से जो कुछ भी हमें मिलेगा हम लाकर सभी पकाकर खा लेंगे। तो उसने वो, क्योंकि वो धनाढ़ था और अपनी एक्सरसाइज करनी चाहता था कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ देश गांव का, तो उसने सारी दुकानों से शुगर, घी, जो कुछ भी वो ले सकता था सारा इकट्ठा करके रख दिया, ताकि जब भिक्षु भिक्षा के लिए आएंगे तो कोई किसी के पास जब गुड़ होगा ही नहीं तो देगा ही नहीं, चावल होंगे नहीं तो देगा ही नहीं, जहाँ आटा होगा तो देगा ही नहीं, तो जो खाएंगे आप भूखे मरेंगे तो मेरे पास आएंगे। तो जब भिक्षु भिक्षा के लिए गए तो किसी ने प्याज डाल दिया, किसी ने आलू डाल दिया, किसी ने जो जो घरों में था तो वो डाल दिया, वो लाकर सारा खा गए। तो उसको पता लगा कि भाई ये तो लोगों ने देखा कि भाई ये इसने हमारे साथ जो किया है अन्याय किया है। तो वो पास के गांव में गए, वहां से जो कुछ इकट्ठा करके ला सकते थे वो उनको देना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे ही इस चीज का प्रचार हुआ कि अब तो बुद्ध धर्म को, बुद्ध को भिक्षा लेने में कोई समस्या नहीं आ रही, तो 14 दिन वहां अपने प्रवचन देने के बाद वो भिक्षु वहां से जाने के लिए बुद्ध ने ऐलान किया कि भाई मैं आज चला जाऊंगा। तो लोगों ने उनको चिवरदान किए। आपको पता है कि बुद्ध ने प्रचार में भी कहा कि हमें 2 चिवर लेके चलते हैं। तो वो चिवरदान किए, तो वो बहुत बड़े हीरे जवाहर जड़े हुए चिवर लेकर भगवान बुद्ध के साथ वो ही धनाढ़ आया, फिर ये दिखाने के लिए कि मैं दिखाता हूं आपको बढ़िया से बढ़िया चिवर होता क्या है। तो वो जैसे ही वो चिवर लेकर आया तो भगवान बुद्ध को कहा कि भाई आप ये चिवर मेरा स्वीकार करें। नमस्कार किया। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा, जैसे वो पहले जब खाना बनाकर रख के बैठा था कि भाई जब इनको कहीं से कुछ खाना नहीं मिलेगा तो मेरे पास खाने के लिए आएंगे, जब उसने देखा कि वो नहीं आए तो वो खाना लेकर गया भगवान के पास। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई हम तो 12 बजे से पहले खा लेते हैं और अब तो हम खाएंगे नहीं, एक ही बार खाते हैं, तो आप ये जो उपासक बैठे हैं, सारे जो जनता बैठी है, उन्हें बांट दो। तो तब जब वो चिवर लेके आया तो चिवर भी बुद्ध ने कहा कि भाई हमारे पास 2 लोगों ने दिए, वो लेकर जाएंगे, तो लोगों को बढ़िया चिवर है, लोगों में बांट दो, सभी को दे दो। तो उसको जेल के